ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन इस তো যোৱাকালি যিয়ে যিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছিজন চাই আছে তেওঁলোকে বাৰু গম পাব, কিন্তু যিয়ে যিয়ে ধৰক চোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আছে OPS ৰিগাৰ্ডিং। তাৰ আগতে প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আগন্তুক APSC আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট DME SSC টেট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এনেকুৱা এক্সামছৰ নোটছ লাগে, দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই এক্সামৰ নোটছবিলাক লৈ ল'ব পাৰিব। তো বলক আমি চাই লওঁ এতিয়া কি নিউজ আহিছে আমাৰ হাতত OPSৰ ৰিগাৰ্ডিং। মই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দেখাম আপোনালোকক তেখেতে কি কৈছিল, য'ত আপোনালোকে ধৰক গম পাব তেখেতৰ গোটেই বক্তব্যখিনি। অখিলেশ যাদৱ হেজ বিন ষ্ট্ৰং এডভকেট ফৰ দ্য reinstatement of the old pension scheme for government employees. He has criticized the new pension scheme. তেখেতে কি কৈছে, নিউ পেঞ্চন স্কিমটো তাৰমানে বেয়া যে, সেইটো কথা তাৰমানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কালি এই কথাটো ব্যাখ্যা কৰিছে, তাৰমানে কেনেকৈ কি ধৰক which has introduced for government employee জইনিং ছাৰ্ভিচ আফটাৰ জানুৱাৰী 1, 2024। এইটোতো জানে বাৰু সকলোৱে, কেতিয়া লাগু হৈছিল এইটো 2004 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। arguing that it does not provide sufficient security for retired employees। এইটোতো হয় বাৰু, কাৰণ চাব মই আগতেও কৈছোঁ যে বহুতে চাকৰি কৰি আছিল, লাষ্ট চেলাৰী তেওঁলোকৰ ধৰক 50,000 60,000 টকা আছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে মানে কি OPS পায় কিমান টকা, মানে কি NPS পায় কিমান টকা, 2,000 টকা, 2,500 টকা, 1,800 টকা, সেনেকুৱা ধৰণৰ। Yadav and his party, the Samajwadi Party, have called for the revival of the OPS। তেখেতে কি দাবী কৰে, OPSটো যাতে ৰিভাইভ কৰা হয় তাৰ কাৰণে তেখেতে দাবী কৰে, which guarantees a defined pension benefit ensuring financial stability for retirees। তো যিবিলাকে ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি এইটো এটা ক্ৰিয়েট কৰে, ইষ্টাব্লিছ কৰে এটাই। He believes that OPS is crucial for welfare and of government employees and has made it a part of his political agenda, particularly applying to public sector workers and their families। তো কি কৈছে যে তেখেতে এইটো লৈ পলিটিকেল এজেণ্ডা কৰিব নিজৰ যিটো পাৰ্টি আছে সেইটোৰ, আৰু যিহেতু সমাজবাদী পাৰ্টিটো এতিয়া এটা ডাঙৰ পাৰ্টি, চ' পজিটিভ নিউজ আহিব বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। মই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দেখাম। আৰু এইটো কি কৰে, যিবিলাক আমাৰ ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফেমিলি বা ধৰক সেই মানুহজনে বুঢ়া কালত OPSটো আহিলে অলপ নহয় বহুখিনি হেল্প হ'ব মানুহটোৰ, কাৰণ তেতিয়াতো আৰু মানুহে কাম কৰিবও যাব নোৱাৰে ন, আৰু NPSত ইমান পইচা নাপায় যে তেওঁ চলি থাকিব পাৰিব ভালকৈ। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ তেখেতে কি কৈছিল অখিলেশ যাদৱে। বলক সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में हैं। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएँ, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहाँ दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि
एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं, वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर